Good morning, everyone. I hope all of you are fine. Today, we'll start with the story that is The Book That Saved the Earth. It is written by Claire Baigo. So, generally, it's a play. There are these characters in this play. These are historian, great and mighty think tank, apprentice noodle, Captain Omega, Lieutenant Iota, Surgeon 2, offstage voice. Scene 1. Read and find out. You have to read. First, we'll read this passage, then, you'll think about the questions of these answers. Why was the 20th century called the era of the book? Who tried to invade the earth in 21st century? Read this passage and then we'll find out the answer of these questions. Now, time. This incident was of the time the 25th century. कौन सी century का है ये time? 25th. We are in 21st century, so this is of 25th century. Place: the Museum of Ancient History, Department of the 20th Century in the Planet Earth. जो अभी planet Earth में Museum of Ancient History है, ये वहाँ का उस जगह का वाक्य है. Before rise, spotlight shines on historian who is sitting at the table down right on which is a movie projector. A sign on an easel beside her reads, Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows to the audience. So, सीन इस तरह से स्टार्ट होता है. स्पॉटलाइट एकदम से स्पॉटलाइट आती है और स्पॉटलाइट एक हिस्टोरियन के ऊपर आती है हु वाज सिटिंग ऑन द टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर. और मूवी प्रोजेक्टर उस हिस्टोरियन के ऊपर है. हिस्टोरियन: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अ म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी. तो हिस्टोरियन बोलता है गुड आफ्टरनून, मेरे म्यूजियम में आप लोग का वेलकम है. इट इज़ अ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी. तो मेरे डिपार्टमेंट में उन सब लोगों का स्वागत है जिनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं. क्यूरियोसिटीज़ क्या होती हैं? किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. 20th सेंचुरी को हम क्या बोलते थे? एरा ऑफ द बुक. इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग from Antiochus to Julius. Books taught people how to and when to and where to and why to. तो books 20th century was called era of the book. और उस टाइम पे हर चीज़ के ऊपर बुक्स होती थी. आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, where to, how to, why to, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड आपको बुक मिल जाती थी उस सेंचुरी में. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. बुक्स जो थी हर चीज़ को इलस्ट्रेट करती थी, सब चीज़ों के बारे में बताती थी. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ. बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो किसी भी बुक ने की थी वो की थी अर्थ को सेव करने की बुक. यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेजन ऑफ 2040. टस्क. What do they teach children nowadays? Well, you know the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A noble encyclopedia? About the rockets and missiles? A secret file from the outer space? अब आप कहेंगे एक बुक कैसे बचा सकती है अपनी अर्थ को, कैसे एक बुक ने बचाया? तो आप सोच रहे होंगे क्या ये बुक एनसाइक्लोपीडिया थी, या ये बुक किस बारे में थी? ये रॉकेट्स या मिसाइल्स की बुक थी, या फिर इस बुक में आउटर स्पेस में जाने का चीज थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज. ये ऐसा इस बुक में कुछ भी नहीं था. इट वॉज. बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो हाउ यू हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040. 2040 में बहुत सेंचुरीज पहले ही कैसे हुआ था मुझे मैं ये बताता हूँ. तो इट वॉज द वर्ड्स ऑफ हिस्टोरियन. She turns on projector and points it left. Spotlight on historians go out and comes up down left on think tank, who is seated on a raised box, arms folded. He has a huge egg-shaped Henry and he wears a long robe decorated with stars and circles.
Apprentice. Noodle stands beside him at an elaborated switchboard. A sign on an eraser reads. अब क्या होता है, जो प्रोजेक्टर हिस्टोरियन की तरफ था, प्रोजेक्टर हिस्टोरियन से हटता है और प्रोजेक्टर हिस्टोरियन से हट के कहाँ पे जाता है, एक अलग तरफ जाता है. वहां पे कौन है, वहां पे एक थिंक टैंक है. हु वॉज थिंक टैंक? थिंक टैंक जो इस प्ले में कैरेक्टर है वो थे. वो कैसे बैठे हुए हैं, एक बॉक्स पे, एक ऊंचा सा बॉक्स है, उस पे बैठे हुए हैं, अपने आर्म्स फोल्ड करके बैठे हुए हैं, और उनके एग शेप्ड हेनरी एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स. और उनका लुक जो है बहुत फनी है, ठीक है. और उनके साथ में कौन खड़ा है, नूडल खड़े हुए हैं. मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ. अब ये कहाँ का है, ये मार्स स्पेस कंट्रोल के बारे में. मार्स स्पेस कंट्रोल के है, जैसे इंडिया का अर्थ का स्पेस कंट्रोल होता है, ऐसे ये मार्स का स्पेस कंट्रोल है. बोज लो बिफोर एंटरिंग. नूडल. बोइंग. अ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स. व्हाट आर योर ऑर्डर्स? तो नूडल आता है. नूडल एक इस बात से हमें पता चल रहा है कि नूडल कौन है, थिंक टैंक का कोई मैन है. और वो आता है बो करते हुए, मतलब सिर झुकाते हुए आता है. क्या बोला है वो, ग्रेट माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर बोला है उन्होंने होल यूनिवर्स का. आप क्या, अब वो ही वांट्स टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम थिंक टैंक. थिंक टैंक peevishly, you left out part on of my salutation. Apprentice Noodle, go over the whole thing again. But थिंक टैंक को उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ बोला नूडल ने, ही वॉज सेइंग हिज पावरफुल, लेकिन थिंक टैंक वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी विद हिज जेस्चर्स ऑफ सल्यूटेशन. उसके सल्यूटेशन से थिंक टैंक खुश नहीं है. वो कहते हैं आप कुछ ने कुछ मिस कर दिया है. तो नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, और नूडल को बोलते हैं दोबारा से मेरे को सल्यूट करो. नूडल. It shall be done, sir, in a sing-song. A great mighty think tank, ruler of Mars and her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe. फिर उसने थोड़ा अपना जो सल्यूटेशन है उसको इम्प्रोवाइज करता है, बोलता है माइटी थिंक ग्रेट माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. व्हाट आर योर ऑर्डर्स? फिर उसके ऑर्डर लेता है. थिंक टैंक अब थोड़ा खुश हुए. He said, that's better, Noodle. I wish to be placed in communication with a manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? नूडल को कहते हैं ठीक है ये थोड़ा अच्छा है. एंड ही विश टू बी प्लेस इन कम्युनिकेशन विद अ मैन्ड स्पेस, मतलब एक ऐसे स्पेस पे वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. छोटा सा प्लेनेट बोल रहे हैं जिसमें आदमी इंसान रहते हैं, और उनके रूलरशिप के बारे में. और व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, मतलब वो किसके, आप सोचिए जिस ऐसे एक छोटे से प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं, मार्स पे बैठे हुए हैं और जहाँ पे इंसान रहते हैं. डू यू थिंक दे आर कॉलिंग अबाउट अर्थ? यस. अब वो कह रहे हैं कि अच्छा उस प्लेनेट का नाम क्या है ना, वो बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं कि ठीक है अरे उस प्लेनेट का नाम क्या है. तो नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस. नूडल उनको याद दिलाता है अर्थ. तो थिंक टैंक कहते हैं अर्थ ऑफ कोर्स, you see how insignificant the place is, but first something important, my mirror. I wish to consult my mirror. तो थिंक टैंक कहते हैं ऑफ कोर्स हाँ ये मैं अर्थ के बारे में ही बात कर रहा हूँ, और कितना इनसिग्निफिकेंट प्लेस है कि मुझे इसका नाम भी याद नहीं रहा. उन्होंने इस तरह से शो किया, लेकिन वो सबसे पहले किस चीज़ को मांगना चाहते हैं, वो अपना मिरर मांगना चाहते हैं. और आई विश टू कंसल्ट माई मिरर. नूडल. इट शैल बी डन सर. ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर. Think tank. Mirror, mirror in my hand, who is the most fantastically, intellectually gifted being on the land? Mirror से क्या पूछते हैं वो अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं. उससे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ब्यूट और मैग्निफिसेंट कैरेक्टर कौन है अर्थ पे, कौन है इस लैंड में. ऑफ स्टेज वॉइस, मतलब पीछे से आवाज़ आती है यू सर, मतलब मिरर बोल रहा है यू सर. थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम. थिंक टैंक थोड़ा गुस्सा होते हैं मिरर पे, क्योंकि पीछे से आवाज़ थोड़ा देर में आई है. उन्होंने कहा जल्दी आपको आंसर मुझको अगली बार जल्दी देना है, इतना टाइम नहीं लगाना सोचने में. आई हेट अ स्लो मिरर. ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर. देयर आई एम. आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस. अब वो अपने आप को देख के बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं हम मार्शियंस जो हैं हैंडसम्स हैं. so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. अब उनका हेड बहुत बड़ा है, और वो अर्थ के जो भी लोग हैं उनको लिए बोल रहे हैं कि हम उन अगली अर्थियंस हैं जिनके छोटे छोटे से हेड्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं. नूडल.
You keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. और नूडल से कहता है थिंक टैंक कि आप अपने दिमाग को थोड़ा एक्सरसाइज डेली करते रहा करो ताकि तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह शार्प हो जाए, बलून ब्रेन जैसे मेरा बड़ा सा दिमाग है ऐसे तुम्हारा भी हो जाए. नूडल, ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो. थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, आई वॉन्ट टू इन्वेट द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच. तो वो कहते हैं कि मुझे लंच से पहले, थिंक टैंक कहते हैं मुझे लंच से पहले इन्वेड करना है. इन्वेड मतलब आक्रमण करना है. किस पे करना है? अर्थ पे करना है लंच से पहले. नूडल, इट शैल बी डन सर. ही जो एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड. अब स्विच बोर्ड जो भी अपने मशीन के सामने खड़े हैं उसके इधर उधर स्विच बोर्ड्स को करने लगते हैं. सीन 2. टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर. कुछ टाइम बाद की बात है ये. प्लेस मास स्पेस कंट्रोल की ही प्लेस है एंड सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी. At rise, Captain Omega stands at center, opening and closing card catalogs drawers in a confused fashion. Lieutenant Iota is up left, counting books in a bookcase. Sergeant Oop is at right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it and then lifting the pages and shaking his head. अब ये कहाँ का है? लाइब्रेरी का सीन है, सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी का सीन है और प्लेस है मास कंट्रोल. दोनों प्लेस की बात हो रही है ये. और एक लाइब्रेरी है जहाँ पे लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो बुक शेल्फ में काउंट कर रहे हैं बुक्स को. सर्जेंट ऊप जो है वो बुक्स के पेजेस को शेक कर रहे हैं. नूडल, एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ दिस स्पेस क्रू सर. नूडल कहते हैं कि मुझे बहुत मतलब स्पेस क्रू का मुझे बहुत अच्छा साइट मिल रहा है. थिंक टैंक puts on a pair of amorgal goggles and turns toward the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो बंदे हैं वो अर्थ जैसे स्ट्रक्चर में एंटर कर चुके हैं. थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टेक्ट. अब वो थिंक टैंक, अब उन्होंने किसको भेजा है? सर्जेंट ऊप को लेफ्टिनेंट आयोटा को उन्होंने भेजा हुआ है. अब थिंक टैंक कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मेरा वॉइस कॉन्टेक्ट कराओ. नूडल, स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन. Mass Space Control calling the crew of Probe 1. Mass Space Control calling the crew of Probe 1. Come in, Captain Omega, and give us your location. अब वो कैप्टन ओमेगा से बात कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड करिए. ओमेगा, स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज अ चेन अराउंड हर नेक. एक डिस्क में बोलते हैं. कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ. अब ये तीनों अर्थ पे भेजे जा चुके हैं. किसने भेजा था? थिंक टैंक ने. विदाउट इंसिडेंट. वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, इंडिकेट्स रूम. एक रूम की तरफ इंडिकेट करते हैं, कहते हैं हमने यहाँ पे रहने का अपना शेल्टर ले लिया है. दिस स्क्वायर प्लेस. हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा? अब वो लेफ्टिनेंट आयोटा से बोलते हैं आपको कोई आइडिया है हम कहाँ पे हैं? आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक. अब वो आयोटा और ओमेगा की बात हो रही है. ओमेगा कहते हैं आपको पता है हम कहाँ हैं? तो एक बुक को उठाते हुए आयोटा कहते हैं कि मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं. आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलियर आइटम्स. अब वो बुक को कहते हैं मैंने ऐसे ये 2000 के करीब यहाँ पे काउंट कर लिए हैं बुक्स. दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न. व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट टू? ये प्लेस हमें कोई स्टोरेज की जैसा, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर करके रखी जाती है कि वो चीज़ लग रही है. अब वो उनको बुक्स और लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो मार्स से आए हैं. ऊप, I haven't a clue. I have been to 7 galaxies, but I have never seen anything like this. ऊप कह रहे हैं I have gone to 7 galaxies, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा. Maybe they are heads. He opens a book and put it on his head. अब वो अपने हेड पे रख के एक बुक को बोलते हैं कि शायद ये हेड है. Say, maybe this is a haberdashery. Omega, bowing low. Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter. ओमेगा कहते हैं कि हो सकता है थिंक टैंक हमें कुछ इस बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ है. थिंक टैंक, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ आइटम्स अप सो दैट आई मे बी व्यू इट क्लोजली. ओमेगा से कहते हैं कि आप एक को ऊपर करिए ताकि मैं इसको देखूं. यस यस, आई अंडरस्टैंड नाउ. सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग एंड प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड. वो कहता है इंडियंस को मैंने हमेशा, मतलब अर्थियंस को मैंने हमेशा खाते हुए देखा है तो शायद ये कुछ खाने की जगह है. ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड. हम कहाँ पे हैं? रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं. वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट. थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच. अब बुक को क्या बोल रहे हैं थिंक टैंक? सैंडविच. ओमेगा, अ सैंडविच. आयोटा, अ सैंडविच. ऊप, अ सैंडविच. थिंक टैंक,
सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट. थिंक टैंक कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंडियन अर्थियंस क्या खाते हैं, सैंडविचेस खाते हैं. लुक एट इट क्लोजली, दे आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज अ सॉर्ट ऑफ फिलिंग. अब वो बुक को किससे कंपेयर करें, सैंडविच से. ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर. थिंक टैंक, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट. डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक? ओमेगा ओमेगा को बोलते हैं कि इसको खाओ. Omega. Oh no, no, but poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. Lieutenant Iota, I order you to eat this sandwich. Omega Iota को बोल देते हैं आप खा लो. Iota, eat it, oh captain. It's a very great honor to be the first Martian to eat a sandwich. I'm sure, but how can I do so impolite as to eat before my sergeant? Sir, Omega Iota को बोलते हैं और Iota sergeant का नाम ले देते हैं. Iota and Omega, for the glory of Mars, oop, oop. Yes, of course, immediately. He oop, फटाफट से उसको खा लेते हैं. Omega, well oop, Iota, well oop. Think tank, was it not delicious, Sergeant oop? अब हम लोग इस स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.